Good morning from Srinagar. This is the view from our hotel room. And time is 10 o'clock now and अभी निकलेंगे हम कारगिल की तरफ. We had a plan to actually leave by 7 o'clock लेकिन निकलते हुए just before we were getting up on the bike, Sanju complained that he has a bit of shoulder pain. Maybe he slept in a wrong position, so उसके लिए उसको थोड़ा सा दर्द हो रहा था. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, let him rest and then we'll push off because today is just 207 kilometers. We'll be passing through Zojila Pass, one of the challenging terrain towards Kargil. We do not have any itinerary as such. I mean to say, रास्ते पे सिर्फ war memorial, Kargil war memorial कवर करते हुए जाएंगे. We'll take our own sweet time to reach there and we'll take some good rest because Sanju को भी rest अभी थोड़ा चाहिए होगा because we'll directly having 2 days of stay in Hanle. हाँ, that will be on Saturday. So तब तक हमें daily we have to ride and these are on an average of 250 kilometers per day. So that's the plan. We'll push off in another 15 minutes and then we'll catch you up on road. See you for now. Till then, enjoy the view. So here we roll back. Yesterday I did shoot the video while entering Srinagar, लेकिन मेरी बैटरी पूरी डेड थी. तो while processing the battery got shut and the video did not get captured. तो ये रहा. Now we are out of the city basically. तो होटल मैंने इसीलिए बुक किया था because I did not wanted to be in a crowded place. I wanted to be somewhere close to Dal Lake so that we could just have a walk beside the Dal Lake. This is beautiful and this is very huge. और हम कल शिकारा राइड पे भी गए थे, मैं और संजू थोड़ा डिस्टर्ब था because things were not happening as per his wish. जैसे उसके गैजेट्स के इश्यूज आ गए थे, but these are all petty issues. What we are really happy about is we do not have any major problems till now, and with God's blessing we will not have it in the ride ahead also. And one more thing I want to mention is कि I don't know, लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब जो हम आते हैं ना डाउन साउथ से या फिर कोई भी जो नॉन कश्मीरीज़ है उनको उतना अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते. मे बी दे लुक देम एज एन आउटसाइडर्स. लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन श्रीनगर और मुझे इस तरह की हॉस्पिटैलिटी कहीं भी नहीं मिली. आई हैव गॉन डाउन साउथ, वी हैव बीन प्लेसेस इन Karnataka is a nice place, people are very accommodating. But here people talk very politely, very nicely. So like if you go into the market, right, जैसे अभी समझो महाराष्ट्र में मुंबई जा रहे हो, कहीं बड़े सिटीज़ में जा रहे हो, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो वो दाम अपना बताएंगे. सोचो कि एक किसी चीज़ की दाम वो लोग बोलते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर सिटीज़, ओके, तो बोलेंगे कि 1000 रुपये एंड देन यू स्टार्ट बार्गेनिंग, राइट. और जब बार्गेन करते हैं तो हम अपना एक प्राइस बताते हैं. Either they get offended, the sellers basically they get offended, or they say इतना में क्या आएगा, हाँ इसका तो हमारा इतनी की तो हमारी खरीदी है, and whatever all that stuff. यहाँ पे if they say 1000 रुपीज़ अभी किसी ने बोल दिया कि ओके, और आप बोलोगे कि नहीं 200 रुपये में दे दो भैया, तो they'll be very polite. In fact जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ले जाइए. जब आपको अगर मन अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप मुझे बाद में पैसे वापस दे दीजिएगा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बाय माई एक्सपीरियंस. इवन लास्ट टाइम जब मैं फैमिली के साथ आया था, हमने कहा कि नहीं इस चीज़ के लिए ये बहुत महंगा बता रहे हो आप. तो व्हेन माई वाइफ वाज बार्गेनिंग एंड शी वाज बाइंग स्टफ, तो उन्होंने कहा सिस्टर जी आप पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, आप ले जाइए इस चीज़ को, हमारे याद से ले जाइए, और जब आपको अच्छा लगे, ये सच में लगता है कि ये चीज़ अच्छी मिली है आपको, तब आप जाके अपने बैंगलोर से पैसे भेज दीजिएगा. पैसे की कोई चिंता नहीं है. एंड दिस इज़ नॉट दे आर सेलिंग
USP, okay? We literally tried to have this tested. हमने कहा कि ठीक है, ये मैं इतनी चीज़ें ले रही हूँ, इसका कैश दे रही हूँ, और ये जो चीज़ के मैं पैसे बेंगलोर से जाके भेजूँगी. दिस इज़ व्हाट माय वाइफ सेड एंड ही एग्रीड. And then eventually we gave. We were just trying to see whether these people are just selling things by talking sweet, but that was not the case. और हाँ, हर जगह अभी जब हम होटल रूम में रुके थे एंड संजू हैड पेन इन हिज शोल्डर्स, तो मैं यहाँ पे नीचे रिसेप्शन पे गया और उनको बताया कि हमें यहाँ पे आसपास कोई क्लिनिक मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त की थोड़ी सी तबीयत नासाज है. तो उन्होंने कहा क्या हुआ. दे वर वेरी केयरिंग. दे केम टू द रूम, दे आस्क्ड हिम हिज अबाउट हिज हेल्थ, और उन्होंने ही कहा कि हम अभी ऑटो मंगाते हैं, आप रेस्ट कीजिए, हम ऑटो मंगा के आपको कॉल करेंगे, आप नीचे आ जाना और हमारा ऑटो आपको लेके भी जाएगा एंड वहाँ पे वेट करके आपको लेके भी आएगा वापस. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, द वेलकमनेस, द वार्मनेस. I don't know what other people have perception, or maybe it's more of the media who say such things, but my experience in both the time was absolutely great. So thank you Kashmir, it was a lovely staying. Only a bit of disappointment was that ये weather ना हमारे बैंगलोर का वेदर इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ठंडा होता है. संजू आगे से यूटर्न करते हैं, और यूटर्न आप शार्प यूटर्न मत करो, फिर वेट आ जाएगा ना आपके शोल्डर पे. माय गॉड, लुक एट दिस वैली. क्या मज़े आ रहे भाई, इतना खूबसूरत है. वाओ, लुक एट दिस. यहाँ पे आके लगता है कि बहुत दूर आए हम घर से ना. फ्लाइट से समझ में नहीं आता, फ्लाइट से इंडिया बहुत छोटा लगता है. रास्ते से आओ तो समझ में आता है कि 3 घंटे में भी आ जाते, उसमें भी सो जाते. इसको पूरे इंडिया को नीचे से ऊपर तक काट के पहुँचना, धूल, बारिश, मिट्टी, ठंड, पसीने, it's a different feeling. It feels it's like an achievement. It's like you have conquered something. और ये मज़ा बाइक पे ही आता है because it gives you a 360 view. Oh my God. अभी मैं साइड में जाके वीडियो नहीं लूँगा. नहीं तो ड्रोन शॉट आ जाएगा. देखो भाई साहब, इनको देखो. आई अप्रिशिएट दीज पीपल यार. सरदार. दिस इज लवली. ये नहीं मिलेगा यार हमको कैप्चर करने के लिए. कार पे भी नहीं होगा ये सब. कार पे एक खिड़की मिलती है. यहाँ पे भी रील बन रहे क्या? मतलब यहाँ पे जो पहन के आते हैं ना सेम कपड़े जोड़ियाँ, वो मन बना के आए रहते कि रील बनाना है. आप भी लाल पहनो, मैं भी लाल पहनूंगी. नाइस. यहाँ पे रुक के एक चाय पी सकते थे, लेकिन देर हो जाएगा ना. रोजी लाना. Guys, just look at the view.
अभी हम हैं सोनमार्ग से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर. इट्स अ लवली सीन आउट हियर. दोनों तरफ पहाड़, बीच में सा झरना बह रहा है एकदम क्लीन वाला. आई एम नॉट एबल टू शो यू बिकॉज इट्स डीप डाउन बिलो. So maybe I can show you like that. No, I can't twist my neck so much, or I don't want to hurt my neck too. Just look at this. This is just beautiful. This hits hard, man. और ये चलेगा थोड़े टाइम तक. I mean to say today's day we would be witnessing the greenery. And from tomorrow I'm sure that it will be all about rock. I mean to say there would be something, everything in brown and grey. आगे हमें इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी क्योंकि कारगिल के बाद I haven't been any time there, but जितना भी नॉलेज है वीडियोज़ एंड रील से ही मिली हुई नॉलेज है. बट हाँ, इट इज़ डेफिनेटली मोर ऑफ बिग माउंटेन पासेस, ग्रीनरी, a lot of water crossings and a lot of fun. That's why we are here for. So this is how it is, Kashmir. But everything is in contrast from last 3 months. As I mentioned that I was here with my family. सब लोग आए थे ना, तभी पहाड़ पूरे सफ़ेदी से ढक गए थे, पूरे बर्फ़ से लदे हुए थे. इस बार ग्रीनरी. बट हाँ, आई एम हैप्पी दैट आई गॉट टू सी द बोथ कलर्स ऑफ कश्मीर. क्योंकि जो हमारे ड्राइवर साहब थे, उनका नाम बिलाल था, बिलाल है. बहुत ही वेरी पोलाइट, वेरी काइंड पर्सन. सो प्रबीर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज बिहेवियर एंड ही वॉज अ गुड लुकिंग गाय. यहाँ पे तो सब लोग गुड लुकिंग ही होते हैं भाई. मैंने ऐसे कोई किसी को देखा ही नहीं जो एवरेज दिखता हो. सभी अच्छे दिखते हैं. एंड he was mentioning that आप गर्मियों में आना, बहुत खूबसूरत दिखता है कश्मीर. हरियाली होती है, बहुत ग्रीनरी, बहुत अच्छा लगता है. आप कभी आना. तो that time it was all about snow. Everything was in black and white. But yeah, we were absolutely delighted for that because उसी के लिए आए थे हम. प्रबीर को हमको दिखाना था कि स्नोफॉल तो लक की बात है जो हमें मिल गई. और हमारी लक इतनी अच्छी थी, जब मैं और प्राची बहुत सालों पहले आए थे तभी भी हमको स्नोफॉल मिली थी. एंड वी हैड विटनेस स्नो. प्रबीर वाज द फर्स्ट टाइम. बट टू बी फ्रैंक, ये 2-3 दिन का खेल है. उसके बाद आपको फिर जो काम ग्रीनरी करती है वो स्नो, सैंड, नथिंग लाइक इट. बिकॉज एक टाइम के बाद ना आप बोर हो जाते हो. जैसे गर्मी में बारिश आपको पसंद आती है, बारिश 2-3 दिनों के बाद आप जब कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते हो ना, तब यू फील दैट कि अरे यार बारिश बंद हो जाए तो कहीं निकला जाए. तो वही सीन वहाँ पे भी होता है. जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ में यू कांट गेट आउट एनीवेयर एंड इट्स अ ट्रबल. आई हैव सीन पीपल नॉट गिविंग अप to just make way for their four-wheelers. That's it. This is the river I was talking about. So we have descended the ghat. और एक चीज़, ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी लेजेंडरी है, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, जो बहुत ही शो ऑफ करते हैं अपने गाड़ियों को लेके.
ये देखो भाई सामने जा रही है लेजेंडरी बाइक, लेजेंडरी व्हीकल, दीज आर द लेजेंडरी व्हीकल्स। ये जो तुम लोगों को देखते हो ना भौकाल मचाने के लिए, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, ये देखो इससे टक्कर ले लो। मतलब उसके बगल से भी हमने निकल रहे हैं ना गाड़ी के, तो इट्स गिविंग आउट अ गुड वाइब्रेशन। दीज आर मैसिव हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। There is a beautiful mosque here. Yeah, nice. I just got hit by what do you say, a stone on my shin. आगे और भी बहुत सारे पत्थर लगेंगे. That's why, see, these shoes are right, what I'm wearing are high knee shoes, so they are a bit uncomfortable at the start. Now I'm used to it. I can walk distances with these shoes. लेकिन जब पहली बार पहनते, anyways before these shoes also I was a fan of boots, so I'm used to wearing high ankle boots. So I just got used to this shoes within couple of days, couple of rides, एक राइड में ही मैं कंफर्टेबल हो गया था. But they give a very good shin protection, because जब आप when we are going fast, the stone hits you at the speed of 110 kilometers per hour. अभी समझो कि बच्चा कभी हाथ घुमा देता ना आप पे, तब कितनी ज़ोर से लगती है. तो अभी सोचो कि जब पत्थर लगता है एट दैट स्पीड, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ख़राब होती है. एंड दैट शिन पार्ट ऑफ योर फीट राइट इज़ वेरी इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ मसल टू कवर योर बोन. तो वो जब लगता है तो बहुत ख़राब लगता है. मुझे डेकेथलॉन यार, रुकेंगे ना भाई? हाँ यहाँ कुछ चाय भी पीने के लिए नहीं है ना, लेकिन हाँ मत खिलाओ भाई तुम, है ना कुछ, मतलब सीन अच्छा है. रुकेंगे ना? हाँ रुकेंगे भाई. आगे नहीं मिलेगा, आगे ये सब नहीं मिलेगा. क्या पूछ रहा है? लोकल है क्या? Okay guys, we'll just take a break and maybe I'll take a drone shot.
ಕನ್ನಡವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದವರು ಗಿರಿನಗರ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? 15 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅಪರೂಪ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಇವ್ರ ಥರ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೆಸರು ತುಂಬ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, adventure related, anything, you can contact Mr. Rahul. I'll just pin down his number. Thank you so much, sir. ಸೇಮ್ ಪಂಕಜ್ ಅವರೇ, ಆರಾಮ ಸೇಫಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. Thank you. Okay, bus. And guys, the most dangerous road in India anyone encountered in the whole of old Zojila Pass. Welcome to Zojila. It has a history behind जोजिला पास का. इंटरनेट पे आपको पता ही चल जाएगा, रील्स में भी बहुत पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप इफ़ यू आर नॉट द वन हु इज़ इनटू राइडिंग एंड लुकिंग इनटू, देन द एल्गोरिथम विल नॉट शो यू द जोजिला पास. द हिस्ट्री है कि दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशल रोड कनेक्शन फॉर द आर्मी सप्लाईज टू कारगिल. और यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी ऑफ द वीडियो ऑडियो. So what I was saying is there is a history of this pass कि ये पाकिस्तानी ने इसको चोक कर दिया था, because there was, this is the major route वेयर आर्मी सप्लाईज पास होता है कारगिल के लिए. और यहाँ पे अटैक, आई डोंट कोट मी ऑन दिस, बट इन दोज डेज वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट गुड. सी टुडे, इवन टुडे, यू नो द सिचुएशन एंड ये हालत जो रास्तों की है, ये अब के टाइम पे है जहाँ पे इतने बड़े बड़े हाईवेज़ बन जाते हैं. ये बारिश की वजह से एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से रास्ता टूटते रहता है. और जब यहाँ पे पाकिस्तानियों ने इस हाईवे को चोक किया था या फिर अटैक किया था, तब इंडियन आर्मी हैड गॉट देयर टैंक्स अप हियर. कैन यू इमेजिन? दे हैड गॉट देयर टैंक्स व्हिच पाकिस्तानीज डिड नॉट इवन इमेजिन दैट इंडियन आर्मी कुड डू सच अ थिंग. And that's why great respect to Indian Army. ये है Zojila की history, and this is one of the toughest terrain, and it is very deep. I don't want to go that side to shoot the video. Okay, but you can see that it's 3,000 feet down there. If you're not totally, concentrating on the road. और क्या है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रोड. यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, सी द लेंस कांट डू जस्टिस टू व्हाट द इंक्लिनेशन इज. आई एम जस्ट गोइंग ऑन फर्स्ट गियर एंड लुक एट इट. दिस इज अ 650 bloody cc and it takes, you know, the torque to pull the bike up. बहुत धूल है, हेलमेट बंद कर लेता हूँ. एंड लुक एट दैट. सो यहाँ पे अगर गाड़ी सही गियर में नहीं है, क्योंकि गाड़ी जब सही गियर में नहीं होती, जब एकदम से बंद हो जाती है ना, तो ये कांट कंट्रोल, गाड़ी गिर जाती है. और ट्रस्ट मी, आई डू अ लॉट ऑफ वेट्स. ये सब अलग चीज़ है. जब ये गाड़ी गिरेगी ना नीचे, इसको मैं अकेले उठा नहीं पाऊँगा. मतलब विथ ऑल द विल आई कैन, बट इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू पिक दिस बाइक अप. Not only with the strength you can't, you need skills also. ये देखो भाई, नीचे दिख रहा है. I should keep ahead of this sumo, क्योंकि ये रुक जाएगा तो मेरा बैलेंस चला जाएगा. भाई बीच में क्यों रुके हो? क्या हुआ? बीच में मत रुको भाई. I have to overtake this.
अदरवाइज ही इज डिस्टर्बिंग माई कॉन्सेंट्रेशन। और धूल भी उड़ाता है ऊपर से। I might as well just stop for it to pass. This bad road will continue for just a couple of kilometers is what I understand, and then it will be all good. But जो Zojila Pass की experience मिला, and I forgot to tell you one thing. This pass is going to close soon because there is a breakthrough, right? I mean to say the tunnel का आखिरी कोना है ना पार कर लिया है. So there will be a fast development on the road. ये जो हम 3 घंटे लगाएंगे कारगिल पहुंचने में, after that tunnel you will finish that route in just 15 minutes. So imagine वो tunnel कितना बड़ा होगा और कितना 15 minutes 3 hours versus 15 minutes. Okay, चलो 15 minutes भी तुम अगर हाँ सुनाई दे रहा है मैं, और आप उठा क्यों रहे हो लेकिन जब हाँ छोड़ दो ना, इग्नोर कर दो. हाँ आप रुक के वहाँ पे फ़ोन ले रहे हो. हाँ आज नहीं मत करो ना, जाने दो. मतलब क्रेडिट कार्ड का फ़ोन उठा रहे हो जब मैं इतनी कॉल कर रहा था आपको आने से पहले. नहीं मैं बता नहीं ना वो नो मैं अच्छा वीडियो चल रहा है. मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम ये राइड शुरू करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या देने के लिए फ़ोन करता था ना आपको सुबह से लेके शाम तक तभी फ़ोन नहीं उठाया मेरा. अभी क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन उठा रहे हो. वाह संजू, वो भी जोजिला पास में. तब देख भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है. अच्छा कहाँ था मैं वीडियो में, कुछ बता रहा था मैं भूल गया. चलो जो भी है हाँ जोजिला पास बंद होने वाला है. इमेजिन कि वो जो टनल इट विल सेव 2.5 hours ऑफ द कनेक्टिविटी बिटवीन कारगिल एंड okay, I'll see you in other side of the pass. See you guys. I'm liking it. Now it's hello everyone. This is 3 o'clock now. जोजिला पास हो गया. फ्रैंकली इतना भी मुश्किल नहीं था जितना ये बातें हो रही थी. और ये रहे हम, ये रहा संजू. जोजिला पास क्रॉस हो गया है. 1 अचीवमेंट डन. तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे. संजू हैज लेफ्ट हिज हाइड्रेशन बैग बिहाइंड अराउंड 15 किलोमीटर्स. तो देखते हैं, लेट्स सी इफ समवन कमिंग फ्रॉम देयर. वी हैव कॉन्टैक्टेड द पर्सन. उसने बोला कि भेज दूंगा, लेकिन अभी किसी से भेजेगा वो चैलेंज है. बट या दिस इज़ हाउ इट इज़. जोजिला पास, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. There you go guys. This is Zojila Pass. The camera can't do justice. This is beautiful. Absolute beautiful. The camera can't really do justice to what I'm seeing right now from my eyes. And our bikes. So Sanju, how is it going? खूप चांगला, खूप भालो. Guys, look at the view. My memory is getting exhausted, but the views are not stopping. This is worth. And there's one. Happy guys! This is lovely feeling, man. These are our riding brothers. We don't know each other, but
We can't stop waving at them. This is just simply superb. And we are having just fun. We are just soaking our eyes. We just thought थोड़ा रुक लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं. So it is. We'll have to park it somewhere. And this is the Kargil War Memorial. And we are going to park our vehicles here. We are going to see a lot of riders. We'll have some tea as well. So if you see any rider who is turning his bike and parking it, तो समझ लो कि वो एक्सपीरियंस राइडर है. नहीं मतलब घुमा के रखना, ऐसे नहीं कि परफेक्ट. जैसे हम फेस द बाइक टुवर्ड्स द रोड ना, क्योंकि इतनी लोडेड बाइक पीछे खींचने में जान निकल जाती है. एंड हियर आर वी एट द कारगिल वॉर मेमोरियल. Guys, we are now at Kargil War Memorial. Lovely. This is the mighty Kargil War Memorial. It's a beautiful place. And trust me, you know what's the time? It's 6:47, and the sun is still shining bright. 6:47, it's almost 7 o'clock, and look at it. So beautiful. This is the entry. Look at this. I don't know what I should call this, but I can call it a Bofors. This is just amazing. It's in live. You can just take a screenshot and read it. I have a limited time of 10 minutes, so I'll also take a screenshot. This is also something worth an information. पढ़ूंगा मैं बाद में. Look at the tricolor and be proud of it. ये कुछ अलग ही फीलिंग देता है भाई, goosebumps. This is the hut of remembrance. I like the entry. It's like a horseshoe. I guess these are the medals in display. See, look at the medals. The real heroes. फोटो तो भाई बनाया, फोटो खींचो. यहाँ फोटो नहीं खींचना. गाइस, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के सेंटर में जो हिल है, ये है टाइगर हिल. जब भी टाइगर हिल की बात आएगी, विक्रम बत्रा का नाम भी याद आएगा. दिस इज टाइगर हिल which was been captured by Pakistanis, and this was been got back by Indian Army. Salute. And this is right in front of Kargil War Memorial. Fantastic feeling.